Hello friends, today we will discuss about flash point temperature, fire point temperature and auto ignition temperature. So these are basic concepts which a safety profession should have a thorough understanding. Many a times we are all by hearting the definition, but in this video I will not be explaining about the definition. I will not be discussing about the definition. Rather we will be seeing what is the practical aspect. हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो गिवन ए पॉइंट फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है क्या, फायर पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है क्या, क्या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इज बिगर. So see, basically flash point temperature is lesser than fire point temperature and fire point temperature is lesser than auto ignition temperature. तो इसमें से auto ignition temperature is having the highest value, उसके कम fire point आएगा और उससे कम flash point आएगा. तो देखेंगे कैसे ये आ रहा है and what is the actual meaning of this. तो ये समझने के लिए you just understand there is a pan. Okay, there is a pan, this is a pan and temperature नीचे से temperature है which is fire which you are giving. Okay, just burning up there है. And there is also oil. So this is the oil. Okay, कौन सा भी एक ऑयल आप जला रहा है and this temperature is increasing. So when the temperature is increasing ऊपर क्या आएगा, वेपर आएगा. Okay, this is the vapor. And now at a certain temperature, एक temperature होने में, see for example 150 degree centigrade. Okay, अभी 150 degree centigrade होने में what you are doing is that you are bringing a matchstick. Now what is this matchstick? This matchstick is an ignition source. ये matchstick क्या हो गया, एक ignition source हो गया. अभी एक matchstick आप just ये vapor के सामने से ऐसा waving करेंगे, you are just waving it off. Okay, इधर इधर waving करेंगे तो this vapor starts to give flash. Okay, the vapor क्या होता है, ignite हो जाएंगे, vapor ignite हो जाएंगे. ओके, लेकिन ये इग्नाइट हो जाएंगे बट इट डज नॉट कंटिन्यू टू बर्न. ये जलेगा नहीं, जस्ट इग्नाइट होगा. ओके, दे विल बी जस्ट गिविंग ए फ्लैश. सो व्हेन द ऑयल इज बर्निंग, ऑयल बर्न होते होते 150 डिग्री ऑयल होने से वेपर तो पहले चालू होने लगेगा, लेकिन एक 150 डिग्री जस्ट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एट 150 डिग्री. सो एट 150 डिग्री दिस मैच स्टिक गिव्स यू फ्लैशेस. वो फ्लैश करेंगे, इग्नाइट करेंगे. सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर. Okay, this temperature is known as flash point temperature. अब ये same situation, now the same situation में क्या हो रहा है, this is an pan, pan में oil है. अभी already oil में 150 degree हो गया and again you are still heating. Now the temperature becomes, again the temperature you are increase करते करते जाते तब temperature 175 degree हो गया, सोचो. So again this vapor is there, vapor now it's coming. Now again you are using this matchstick and you are waving this matchstick over the vapor के ऊपर आप ऐसा matchstick you are waving. Okay, now this oil पहले क्या हो गया, फ्लैश हो गया at 150 degree centigrade. Now this flash, it's not only flashing but it starts to burn. ओके, ये सिर्फ फ्लैश नहीं हो रहा है, सिर्फ इग्नाइट नहीं हो रहा है, ये बर्न करने के लिए चालू हो रहा है. नॉट ओनली फ्लैशिंग, अभी ये बर्न हो रहा है. सो दिस टेम्परेचर एट विच द वेपर स्टार्ट्स टू बर्न, सिर्फ फ्लैश नहीं हो रहा है, बर्न हो रहा है. बर्न मतलब जल रहा है. पहले क्या हुआ, इट वॉज नॉट जल रहा नहीं था, जस्ट एक फ्लैशेस दे रहा था, मतलब कंटिन्यूअसली जल रहा नहीं था. जब कंटिन्यूअसली जलेगा यू विल कॉल इट एज फायर पॉइंट. फायर उधर है बिकॉज कंटिन्यूअसली जल रहा है, फायर है, इट इज बर्निंग. यहां पर फायर नहीं है, जस्ट फ्लैशेस आ रहा है, दैट इज फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा जलते ही रहेंगे. फायर होगा तो जलते ही रहेंगे फायर पॉइंट टेम्परेचर में. नाउ व्हाट इज दिस ऑटो इग्निशन टेम्परेचर. ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, कंफ्यूजन नहीं होना है. ओके, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर में देखो सेम प्रोसेस, आप फिर से ये ऑयल को जला रहा है, ऑयल से वेपर आ रहा है. 150 हो गया, 150 में जस्ट फ्लैशेस आया लेकिन जल रहा नहीं, जस्ट थोड़ा थोड़ा फ्लैशेस आ रहा है. फिर 170 हो गया, 170 में क्या, दिस आर ऑल हाइपोथेटिकल नंबर्स. हाँ, हर ऑयल के लिए नंबर्स बदलते ही रहेगा. 175 में नहीं तो 170 में द ऑयल स्टार्ट्स बर्निंग, नाउ कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है. ओके, अभी एक दूसरा ऑयल पकड़ा, ऑयल को जला रहा है, वेपर्स आ रहा है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस ऑयल यू आर कंटिन्यूअसली बर्निंग ऑलमोस्ट 370 नहीं तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया. दिस 300 डिग्री सेंटीग्रेड में व्हाट हैपेंस इज दैट दिस ऑयल, आप इग्निशन सोर्स, पहले आप दोनों बार इग्निशन सोर्स लाए थे, मैच स्टिक लाए थे. यहां पर यू आर नॉट ब्रिंगिंग एनी इग्निशन सोर्स, विदाउट एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स ये ऑयल हीट होने लगा और ये ऑयल जलने लगा.
That means spontaneously ignite हो रहा है without any need of an ignition source, without any need of an ignition source, without any need of a matchstick, जलने लगा. That is auto ignition. Automatically जल रहा है. Auto ignition temperature. समझ में आया? Flash point temperature means when you are bringing the ignition source, what happens is it will be giving flash, लेकिन continuously जलेगा नहीं. फायर पॉइंट टेम्परेचर में क्या, आप एक इग्निशन सोर्स, एक जलने का एक मैच स्टिक लेके आया, सामने वेपर के ऊपर आप व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दैट, इट स्टार्ट्स टू फ्लैश, फ्लैश के बाद बर्न होते ही रहेगा. ओके, बर्न होते ही रहेगा. यहां पर आपको इग्निशन सोर्स लेके आने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जलने लगेगा. तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड, सी व्हेन द टेम्परेचर इज ऑफ फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर, एक लिक्विड का फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर वेदर इट इज 170, so what you have to do, if that oil is actually working at this temperature, तो आपको उसका स्टोरेज के बारे में ख्याल रखना है. ओके, बिकॉज यू शुड नॉट अलाउ दैट ऑयल टू रीच एट दैट स्टोरेज, बिकॉज अगर स्टोरेज में अगर ये टेम्परेचर आएगा तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस. सिंपली फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बाय हार्ट करने से फायदा नहीं है. आपको एप्लीकेशन लेवल पे आपको सोचना है, एंड दिस यू हैव टू ब्रिंग इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. दैट इज हाउ you will be a different safety professional with experience, with qualifications. You will understand. Okay, please subscribe to this channel, and also for any of your course related objectives or any of your course related doubts, you can contact us. We are helping for various safety related courses. Our number is given in the description and you can contact me. Thank you.